My dear scholars, my dear students, a very interesting debate has already started by Karl Marx. Physical labor is important, required by the industry. But the question is, what is the place of mental work? थोड़ी देर के लिए 18th century में 1850, 1848 छोड़ दीजिए mental work को. Let's focus on physical labor then. So in other words, labor is provided by workers of the factory, right? Labor is provided by those group of people who are working on the assembly line. So then the question is, value, अब वो value financial value, फिलहाल उसका focus financial value है. इसलिए कि economics का focus तो issues related with money, issues related with earning more money. तो value creation से मुराद 18th century में more and more financial value. Social economist का focus financial value के साथ कुछ social values भी था. But that kind of thinking raised the question, what could be the relationship between the labor या laborer या worker और वो financial value. अच्छा, वो financial value किसकी होगी? laborer की तो नहीं होगी ना. laborer को तो उसके wages मिलेंगे, salary मिलेगी. बल्कि salary का भी concept 18th century में नहीं था, wages का तसव्वुर था. तो अब क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल वैल्यू तो चली जाएगी कैपिटलिस्ट के पास, उस इंडस्ट्री ओनर के पास जिसने वो इंडस्ट्री लगाई है. सो व्हाट कुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर एंड द वैल्यू क्रिएशन? कार्ल मार्क्स एग्रीड. कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड. He believed that since in the period of enlightenment there was no discussion of the working class, focus was on thinking, and physics and math provided new technology, industry was coming up, तो वर्किंग क्लास और वर्कर्स के इंटरेस्ट का तो तसव्वुर ही नहीं था ना. इसलिए कि फिजिक्स और मैथ के अंदर तो वर्कर की बात कौन करेगा? और इकोनॉमिस्ट जो हैं, दे वर आल्सो मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैथमेटिकल मॉडल्स. इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी भी फिजिक्स ही के प्रिंसिपल्स को यूज करके डेवलप हो रही थी. तो वर्कर्स की बात कौन करता सिवाय सोशल साइंटिस्ट के? तभी कार्ल मार्क्स का नाम आ रहा है ना. बड़ी मशहूर उसकी किताब है दास कैपिटल. तो उसका कहना यह था 1848, because economists are looking at the workers that they should provide their muscle power, their physical power, their physical labor. Value should be created and the financial value will belong to the capitalist. इसलिए कि capital उसने invest किया है. But now slowly workers were not contented. हमारे wages, हमारी working conditions, हमारे working hours, इंसान है ना, वो उससे contented नहीं थे. Values being created, financial value is taken away in a very large proportion by the capitalist. अभी हम उनको capitalist कहेंगे, बाद में उनको हम industrialist कहेंगे, लेकिन 1848 let's call them capitalist. So there is a discussion now, there is a debate now, there is an argument now between the capitalists and working class, labor class. Workers came up with their own idea. देखिए, एक तरफ तो ये डिबेट थी कि स्टेट शुड कंट्रोल द एंटरप्राइजेस, द ऑर्गेनाइजेशंस. दूसरी तरफ ये डिबेट है कि नहीं, प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए. एक तीसरी डिबेट इमर्ज कर रही है कि वर्कर्स थॉट, लेट्स पूल आवर मनी टुगेदर, let's come up and start our own firm, our own company, our own enterprise. This is the time which is known
as the movement of the cooperatives. Cooperative societies, cooperative organization, cooperative banks, आपने मुख्तलिफ नाम सुने होंगे. तसव्वुर उसका ये था कि वर्कर्स गेटिंग वेजेस, लेट्स पूल आवर मनी. क्या मकसद? मकसद तो ये है कि सारा पैसा, सारी फाइनेंशियल वैल्यू जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो एक आदमी, एक कैपिटलिस्ट ना ले जाए. फैक्ट्री का ओनर, उसका हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए. और अगर वो नहीं दे रहा तो लेट्स कम अप विद आवर ओन पूल्ड मनी invested in a firm. Rethinking of the value creation and relationship of value creation and labor was needed then. या यूं कह लीजिए कि there was a need of a new relationship between the employer and the employees. Employer कौन है उस वक्त? Capitalist, owner of the company. Employee कौन है? वर्किंग क्लास, लेबरर्स. तो आप में से जो एचआर के स्टूडेंट्स हैं, आज की जुबान में आप ये कहेंगे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन देम? बिकॉज एम्प्लॉई इज थिंकिंग आई एम द रीजन टू क्रिएट द वैल्यू. मेरी वजह से पैसा आ रहा है. कैपिटलिस्ट कहता है नहीं, मैं तुम्हें वेजेस दे रहा हूं, ये जितना मुनाफा आ रहा है, जितना प्रॉफिट है, जितनी प्रोडक्टिविटी है, वो सब मेरा कमाल है. दैट वाज द डिबेट. कार्ल मार्क्स वाज आर्गुइंग ऑन द साइड ऑफ द लेबरर. ही हैड आर्गूड फॉर सेल्फ इंटरेस्ट. सेल्फ इंटरेस्ट किसका? कैपिटलिस्ट का. कि कैपिटलिस्ट हैव देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, दे हैव देयर ओन. याद है सेल्फ लव की हमने बात की थी. लव फॉर मनी, love for commerce, but love for money. So Karl Marx argued that the capitalists have self-interest for their capital and they have no interest for workers. So in other words, the interest of the workers and the interest of the capitalist will be at odd. बात तो समझ में आ रही है. कन्फ्लिक्ट तो होगा, और कन्फ्लिक्ट हुआ. अगर आप हिस्ट्री को देखें तो 1 मई का जमाना नोट कीजिए कि लेबर मूवमेंट का क्लाइमैक्स था, और कितने लोग लेबरर, आज भी पूरी दुनिया के अंदर 1 मई लेबर डे के तौर पर मनाया जाता है. लेकिन कार्ल मार्क्स, बीइंग एन एडवोकेट ऑफ द लेबरर्स, आर्गूड दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. सो इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, then at the end of the day, working class will seize the industry. कब्जा कर लो भाई. इसलिए कि काम तो फैक्ट्री में वर्कर्स कर रहे हैं ना, नंबर भी उनका ज्यादा है. फैक्ट्री ओनर तो एक होगा या उसके साथ कुछ उसके सिक्योरिटी गार्ड होंगे. सो ही आर्गूड दैट वर्किंग क्लास शुड सीज द कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. और जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा तो पैसा तो वहीं से जनरेट, वैल्यू कहां से क्रिएट हो रही है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से. तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ कैपिटल, एक नया इंटरेस्ट डेवलप हो गया, एक नई डिबेट स्टार्ट हो गई, एक नया आइडिया सामने आ गया. एंड देन इकोनॉमिस्ट एंड सोशल इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट हैव टू सॉल्व दिस. दैट्स वेयर द मैनेजमेंट थ्योरी स्टार्ट्स कमिंग इन.